Still not able to believe that. हम लोग आए हैं होटल पारस, जिसको आप देख के हो जाएंगे चकाचौंध। चलिए देखिए, हम लोग आ गए होटल पारस। थैंक यू सर। आज लीडर हमारा स्पॉन्सर्ड है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड से, और सभी का वेलकम है आज लीडर में। और हमारे फॉर्मर हेड एंड डीन यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ साइंस एंड चेयरमैन स्पोर्ट बोर्ड प्रोफेसर विनोद अग्रवाल सर, प्लीज सर। So you are welcome in this Udaipur city. थैंक यू सर। Already myself Vinod Agrawal, student of this department, also served in this department for 37 years, and I also still working in this department in a project. Let me introduce our some dignitaries who are present here. You know this Professor K.C. Tiwari. He is a former professor of the MS University of Baroda and belongs to Udaipur, but he served in the Baroda. Professor N.K. Chauhan is very much known structural geologist. He also served in the Department of Geology, Udaipur. He was the head of this department, and renowned structural geologist in our country. Mrs. Kavita Bharadwaj, she is the head of the exploration in India of the Vedanta Group, Hindustan Zinc. Hello. She is doctor. She did PhD under the supervision of N.K. Chauhan, but we are proud. She is the head of the India of the Vedanta Group, Hindustan Zinc, exploration head. Thank you. And you know this Dr. Gaurav Chauhan from KVK University, Bhuj Kutch, and we are very associate. I think from first Geo Youth, he was the participant as a student. Now he is the faculty, but from first US he is continuously coming. Expert also. Sure. आप भी आ गया हूँ ना भाई साहब। एक्सपर्ट है आज के, जो आप लोगों में से निकल के अच्छा काम किया है। जैसे आपके जो है ना इंडियन आइडल में आते हैं कि नया कक्कड़, हमारे यहाँ की नया ककड़ आइडल नहीं है मेरी। आपको बता दूं कि जो हेरिटेज जर्नल है, जो स्प्रिंगर का है, वेरी फेमस जर्नल, और दे आर प्रोड्यूसिंग वन वेरी बिग वॉल्यूम ऑन जियो हेरिटेज ऑफ इंडिया, और ही इज द एडिटर ऑफ दैट, दिस पर्सन। वेरी मतलब बहुत इंडियन को कौन पूछता है,
पर ये इंटरनेशनल जर्नल है, ये द एडिटर ऑफ दैट जर्नल. सो आप Just want to add on that our Indian journal, Geodetic Journal, जो वॉल्यूम आ रहा है, it is the largest volume in the world. Dr. A.K. Vaid, Additional Director, Mines and Geology, retired from that post. He was the gold medalist of the Department of Geology in 1974, and is my elder brother. Professor Parashar, he is from Bhopal. I think almost all the heritage, he came here every time. He came here and encouraged the students in coming from Bhopal. And Dr. Rajnikant Patidar is the assistant professor in our department. He is working on the carbonatite. Carbonatite was a very important rock, particularly with respect to the rare earths. So he worked on the carbonatite in our assistant professor in the department. And come forward. Akhil, come forward. Akhil, Miss Neha Rad, she is also assistant professor in our department, and she's main field is the groundwater. She is our assistant professor. Mr. Akhil Trivedi, he was earlier in the Mineral Exploration Corporation, but he just after 3-4 years back he joined our department as assistant professor. Subhash, come forward. Dr. Subhash Janagal, he is also assistant professor in our department. He is working on the clays, Rajasthan clays. Maya, come. Dr. Maya Chaudhary, and she is also assistant professor in our department, and she is working on the paleontology. And I was also a student of this department only. I did my BSc, MSc, PhD, MTech, everything from this department. And right now I am assistant professor here. He is Dr. Yogesh Manath. He is hydrologist in the government of Rajasthan, posted in the Alwar, but in GeoUth he especially came here. Anybody? Harish. You know Harish Kapasia, Dr. Harish Kapasia. He is the main pillar behind this GeoUth program. And what can we say? He is a structural geologist mainly. Very good, enthusiastic worker. He is doing a lot of things in the department. Sir, Hemant. Dr. Hemant Sen, basically he did his PhD in the groundwater, but he is working with me in the department. Although I am retired 7 years back, but still I am engaged in the research work, and he is working with me. And he is a very good businessman. Anybody? Please, I forgot. Anybody? Yes. पूरा जो GeoUth हो रहा है उसके जो पीछे टीम के जो मैं बताता हूँ वो टीम आपके पीछे खड़ी हुई है, आप जानते हैं, एकोमोडेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। आपको लेने आ रहे हैं रात को 10 हो 11 बजे हो, बिल्कुल घूमिए। मुझे पता है यहाँ 7 दिन तक सोई नहीं है। Last but not the least, our head of the department, Everybody is doing. Dr. Ritesh Purohit, very young man, very enthusiastic, or very having good vision to how to develop the department. तो और चूँकि हमारे तो स्टूडेंट रहे हैं, लेकिन फिर भी इनका बहुत वो है, काम भी कितना अच्छा है। अच्छा काम है। और आप देखिए कि प्री कैम्प में रिसर्च जैसे जर्नल में आपके पेपर पब्लिश होना वेरी डिफिकल्ट, और इनके ज़्यादातर पेपर उसी में है। तो यू ऑल आर वेलकम। हाँ, मिस्टर अरुण, आपका ये बिल्कुल कई सालों दिनों से लग रहे हैं, महीनों हो गए मेरे ख्याल से, और he has just got opportunity as a
अपॉइंटमेंट एज ए जियोलॉजिस्ट हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड और 14 लाख का इनको पैकेट मिला हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। फ्रेश एमएससी मिस्टर रोहित जो हम क्या हमारे तो बुढ़ापा है ना, हम तो भूल भुला जाते हैं। पर ये मिस्टर ये क्या है, ये बहुत हमारे वर्कर ये तो है कि रात दिन हमारी तो सेवा करते हैं, इसलिए तो ये इज ऑल्सो वेरी इंथुजियास्टिक वर्कर और ही मस्ट नीड योर क्लैप्स। In the end, I would just like to request our both the jury member, particularly Professor Tiwari and Professor Parashar, to say something to encourage our students. You all, मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप लोग बहुत खुश नसीब हैं कि आपको ये माहौल मिला, क्योंकि मैं कई मतलब 6 जियो यूथ में आया हूँ, 7वां जियो यूथ में ऐसा, और ये इंटरेक्शन इतने बड़े बड़े लोगों के साथ यदि आपका हो रहा है तो आपकी और हो सकता है कि ये इंटरेक्शन आपके बहुत फ्यूचर के लिए भी काम आए, ठीक है ना। आज जो आपने प्रेजेंट किया वो तो सब ठीक है, कुछ आपकी गलती हो सकती है 10 मिनट के अंदर जो आपने दिया, पर उसका प्रभाव, उसका इफेक्ट, उसका इम्पैक्ट आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा सब हो। तो आप सभी मेरे ख्याल से जो फिल्टर होके आया है जियोलॉजी के लिए आया है और आपको जियोलॉजी के लिए ही जाना है, ये हम मानते हैं, तो आप हमारा फ्यूचर है और ये फ्यूचर यदि अच्छा होगा तो हमारा इंडिया का फ्यूचर भी अच्छा है। तो आप सभी बधाई के पात्र हैं और ऑर्गेनाइजर्स तो यही बधाई के पात्र, वो तो हर साल प्रोग्राम करते हैं, पर हर साल ऐसे जेम स्टोन हमारे साथ आएंगे तो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू। डॉक्टर गौरव चौहान है ना, बहुत जानते होंगे आपके कच्छ वाले तो है, इज फ्रॉम कच्छ यूनिवर्सिटी कोच। इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो फर्स्ट जो यूथ हुआ था, ठीक है, आज से 15-13-14 साल पहले, 12-13 साल पहले, फ्रॉम फर्स्ट जो यूथ he is regularly coming in every way. Because as a student he came that time. Now he came as a jury member. so youth जितने भी हम लोगों को एक्सपर्ट्स ने बोला होगा, सजेशन दिए होंगे, समटाइम क्रिटिसाइज किया होगा, देखो सबसे पहले तो आज जब एक स्पेसिस्ट ने बात बोली कि आउट ऑफ 4 करोड़ स्टूडेंट एमंग्स 30 करोड़ स्टूडेंट जो होते हैं, हम उसमें से वही हमारे लिए लकी बात है। हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जो 30 करोड़ स्टूडेंट है जो लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं उसके लिए हम कुछ करें, ठीक है। तो मैं अपने आप को लकी महसूस करता हूँ कि मैं उसमें से हूँ, पहली बात। दूसरी बात कि जब पहली बार जीयूथ में आया था उससे पहले मैं भी बिजनेस करता था कि हर एक जब 12th की बात आती तो पेरेंट्स बोलते कि भाई कुछ कमाओ, मैं भी करता था। लेकिन जीयूथ में आने के बाद जब मैं मिला, मतलब लेट प्रोफेसर राणावत साहब, अग्रवाल सर, निगोरी सर, चौहान सर से मैं जब मिला तब उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। और जीयूथ कॉन्फ्रेंस में जब इंडिया लेवल से जब बहुत सारे पार्टिसिपेंट को मिला तब मुझे मालूम पड़ा कि भाई ये कितना बड़ा फील्ड है। आज आपने प्रेजेंटेशन में बोला कि SYBSC से मुझे मालूम पड़ा कि जियोलॉजी नाम का कोई सब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो तब से लेकर आज तक ये जियोलॉजी सब्जेक्ट से मैं लव करता हूँ और मैं जितने भी जियोलॉजिस्ट हैं मैं चाहता हूँ कि उनकी मैं सेवा कर सकूँ और वो भी मेरे से आगे बढ़े। तो जब से मैं MSc स्टूडेंट की हैसियत से भी मैं 2 बार आया हूँ, PhD स्टूडेंट की हैसियत से मैं 5 बार जीयूथ में आया हूँ, पिछले आई थिंक 3 साल से मैं एज अ कीनोट स्पीकर आ रहा हूँ। तो आप लोगों के लिए नंबर आना या ना आना कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। द इम्पोर्टेंस कि आप लोग अपने थॉट एक्सप्रेस कर पा रहे हो, ठीक है। और जियोलॉजी इज़ वेरी लिमिटेड, बहुत हमारी सोसाइटी बहुत लिमिटेड है और हमारे पास जो गुरुजन है वो भी बहुत लिमिटेड है, ओके। तो मैक्सिमम इन लोगों का लाभ लिया जाए, इन लोगों के एक्सपीरियंस से सीखा जाए और आने वाली जनरेशन को कुछ डिलीवर किया जाए, हमको कुछ सीखा जाए, तो बिलीव मी कोई भी जियोलॉजिस्ट कभी भी बेकार नहीं बैठेगा, ठीक है। आप कहना चाहें? नहीं, मैं तो यही कहना चाहता हूँ भाई, मैं गवर्नमेंट में रहा 37.5 साल तक,
एडिशनल डायरेक्टर रहा मैं राजस्थान में, पूरा रास्ता संभालता था। ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको जियो यूथ वाले दे रहे हैं कि आप अपना प्रेजेंटेशन दे पा रहे हैं। आदमी शुरू में तो खड़ा होता है तो घबराता है, काँपता है, उसके हाथ पैर काँपते हैं, बोलना सीखता है, करता है। तो आपको ये अपॉर्चुनिटी कि यहाँ आप अपना 10 मिनट 15 मिनट के लिए आप अपना पेपर दे सकते हैं। जियोलॉजी में अपॉर्चुनिटी है, अच्छा सब्जेक्ट है, आप लोग मेहनत करते रहिए। मैंने 70 क्रॉस कर लिया है, उसके बाद भी मैं एकेडमिकली आज भी एक्टिव, आज भी मैं पेपर आर्टिकल लिखता हूँ। आज ब्रदर के साथ में हम लोग मिलकर कुछ आर्टिकल लिखते हैं। मेरे खुद के गवर्नमेंट में रहते हुए आदमी बहुत ज़्यादा ऐसा हो जाता है। क्या है गवर्नमेंट में तो आप जानते ही हैं, इससे गवर्नमेंट में तो पॉलिटिक्स में चल जाता है, ट्रांसफर पोस्टिंग की तरफ ध्यान देना पड़ता है, बाकी तो मैंने जरूरत है। फिर भी मैंने 70-80 आर्टिकल पेपर इंटरनेशनल सब लिखे हुए हैं, आज भी लिखने की चाह है। आप करते रहिए, कुछ ना कुछ प्लेटफॉर्म मिलेगा। MSc जियोलॉजी कर लीजिए, उसके बाद PhD कर लीजिए, आप अपना बिजनेस कर सकते हैं। मैंने आफ्टर रिटायरमेंट एक अभी मेरा इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ तक का है। 10 करोड़ का एक क्वार्ट्ज का फैक्ट्री लगा रखा है, क्वार्ट्ज का पाउडर और दाने का बनाते हैं, ठीक है। मेरा बेटा उसके साथ में रहता है, तो करीब रिटायरमेंट के 9 साल हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं मैं एंगेज हूँ। तो कुछ ना कुछ करते रहिएगा। एक बहुत अच्छा फील्ड है MSc का। MSc कर लीजिए, उसके बाद PhD कर लीजिए, अपने आप को एंगेज रखिए, बिजनेस करिए, कुछ ना कुछ एंगेज रखिए, घर में नहीं बैठना है। तो प्लेटफॉर्म आपको छोटा मिल सकता है स्टार्टिंग में। आने वाले कल में आप जियोलॉजी के साथ में माइंस मैनेजर बनिए। अगर आप माइंस में जाते हैं तो माइनिंग के जो भी हैं वो भी आप सीखिए। सेकंड क्लास कर लीजिए, सेकंड क्लास तो इक्विवेलेंट हो जाता है, तो फर्स्ट क्लास कीजिए। ऐसे अपने आप को अगर आप करेंगे, जेंट्स और लेडीज़ में तो कोई फर्क है ही नहीं, तो आप अपने आप को करेंगे तो आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म 5-7 साल में मिल जाएगा, है ना सर। जैसे आप हमारे ये कहाँ से कहाँ पहुँच गए, देखो कितनी यंग एज में, तो ये इंस्पिरेशन है अपने लोगों के लिए, सब बोलो। थैंक यू सर ने मुझे इतना मान दिया इसके लिए। पर बेसिकली ये सब कुछ मैं कह सकती हूँ ये गुरुजनों का मेरा आशीर्वाद है। और ठीक है, मेहनत हम सभी करते हैं, कई बार ऊपर वालों का और गुरुजनों का आशीर्वाद से हम आगे बढ़ पाते हैं। और अगर बीइंग अ फीमेल जियोलॉजिस्ट में बोलूँ तो हालांकि जियोलॉजी में इतनी एक्सेप्टेंस नहीं होती है फीमेल्स की, बट मुझे कभी ऐसा ये बैरियर कभी लगा नहीं, और मुझे कभी डिपार्टमेंट से वो बैरियर कभी फील हुआ नहीं। इसीलिए शायद, और वेदांता ऐसी कंपनी है कि वो हमेशा इस स्टीरियोटाइप से बाहर है, तो उन्होंने हमेशा अपॉर्चुनिटी दी और मैंने ग्रेप की अपॉर्चुनिटी और अपने आप को प्रूव किया। जहाँ पर भी मुझे ज़रूरत पड़ी हेल्प की, मैंने अपने सारे सीनियर जो भी गुरुजी हैं उन सबसे हेल्प लिया, और आज मैं इंडिया लेवल पर हेड कर रही हूँ पूरे एक्सप्लोरेशन को। थैंक यू। और आप लोगों के लिए भी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। और अगर आपको कभी भी किसी भी तरह की मुझसे ज़रूरत हो तो डेफिनेटली यू कैन कॉन्टैक्ट, मेरा नंबर वैसे मिल जाएगा डिपार्टमेंट से, सो एनी टाइम यू कैन कॉन्टैक्ट मी फॉर एनी सपोर्ट। थैंक यू। बच्चों को ये बचपन में और या यंग एज में तो जो स्थिति थी वो बहुत लड़खड़ाने वाली थी, मगर लड़खड़ाने का मतलब ये क्या ना, मतलब जो आम स्टूडेंट होता है, अरे इनको बताना है, आम स्टूडेंट के हिसाब से भी सिंसियरिटी में बहुत कमी थी, मगर आज की तारीख में आपने हमारा नाम ऊंचा किया है गुजरात स्टेट के अंदर, उसके लिए हम आपके कृतज्ञ हैं। बोलना जरूरी था भाई, मैं बोल सकता हूँ। I don't feel that it's a proper time to discuss all these things. Anyway, क्योंकि अभी सर ने जब बोल ही दिया है तो मैं आपको बताता हूँ, और ये रियलिटी है। आप सभी भी इंट्रोस्पेक्शन कर सकते हैं इस चीज़ को कि मेजोरिटी जो जियोलॉजी में आते हैं दे आर कमिंग बाय कंपल्शन, क्योंकि बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स जो ऊपर के जो एलाइड सब्जेक्ट्स हैं उसमें हमको एडमिशन्स नहीं मिलते हैं मेरिट। गर्ल्स की बात छोड़ दीजिए, उसमें बहुत सारे होंगे एक्सेप्शन, बट मेजोरिटी की बात करता हूँ मैं, मेजोरिटी की बात करता हूँ। एंड दैट्स व्हाई जियोलॉजिस्ट जब MSc करता है और प्रोफेशनल करियर में जाता है तो उसको एक इमीडिएटली सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वो होती है टू डील विद द मैथमेटिक्स एंड सिंपल एस्पेक्ट्स ऑफ द फिजिक्स विच आर इनबिल्ट एज ए पार्ट ऑफ जियो फिजिक्स हो सकता है, इंजीनियरिंग जियोलॉजी हो सकता है, माइनिंग जियोलॉजी हो सकता है, रॉक मैकेनिक्स हो सकता है। तो ये सब चीज़ें हैं जो क्या है कि क्योंकि आप हमारे उसमें वो एक लेकुना है। नॉर्मली क्या होता है, फिजिक्स मैथमेटिक्स जियोलॉजी वाला है तो ही विल फेयर वेल, जियोलॉजी में पुअर होगा, बट क्योंकि फिजिक्स मैथमेटिक्स साउंड है तो उसका परसेंटेज उस हिसाब से चला जाता है। और जो बायोलॉजी कॉम्बिनेशन वाले होते हैं तो उनका हमेशा जो क्या एक लेकुना रहता है, वो प्रोफेशनल करियर में है जो क्या है कि कई बार है जो क्या है कि काफ़ी सेटबैक्स आते हैं क्योंकि आपकी एक इनहेरेंट वीकनेस होती है। नाउ द टाइम हैज चेंज बेसिकली,
टेक्नोलॉजी का ज़माना है और टेक्नोलॉजी से जो क्या है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो क्या है कि आजकल हम लोग काफ़ी इजी हो गया हम लोगों के लिए। जैसे कि अगर आपको जो क्या है कि हम लोग हमारे समय में हम देखें कि कोई भी मैप को अगर एनलार्ज करना होता था तो ट्रेसिंग पेपर पे 1:50,000 की टोपो शीट को हम पहले ट्रेस करते थे, फिर वो फोटोग्राफर उसको उस हिसाब से एनलार्ज करता था, फिर उसका अमोनिया प्रिंट निकलता था, ये सब चीज़ें। अभी तो आजकल ये जो क्या है एवरीथिंग आपको हर चीज़ जो क्या है कि इवन मोबाइल पे यू कैन हैव। सो थिंग्स हैव बिकम फास्टर। आज वर्ल्ड में कहीं भी कोई पब्लिकेशन अवेलेबल या लेटेस्ट अपडेट जियोलॉजी में होता है, गूगल के ऊपर आपको ये जो क्या नेट पे अवेलेबल होता है। लेकिन प्रॉब्लम आती है कि हमें से कितने लोग उसको पढ़ते हैं। मेरे भी बहुत सारे पीएचडी स्टूडेंट्स ने पीएचडी किया है। हम लोग रेफरेंसेस एक टाइम था जब फोटो कॉपिंग की फैसिलिटी नहीं थी तो लाइब्रेरी में कार्ड के ऊपर वी यूज्ड टू राइट दी एब्स्ट्रैक्ट एंड दी रेफरेंसेस इन ऑल पढ़ के। आज होता है कि आपने उसको डाउनलोड किया, फाइल में डाल दिया। जब थीसिस लिखते तो अभी क्या है, अच्छा चलो यहाँ रेफरेंस लगाना है, टिका दिया। 80% थीसिस में होता है। सो टेक्नोलॉजी को अपने एडवांटेज में लेना, जहाँ आपको करियर बिल्डअप में जो फैसिलिटेट करता हो, नॉलेज को एनरिचमेंट करता हो, वो चीज़ तो समझ में आती है। लेकिन ये जो शॉर्टकट्स हैं, वो शॉर्टकट्स कभी आपको एज ए करियर में सक्सेसफुल नहीं बना सकते। सेलेक्टिव स्टडी होती है, बहुत से लोग पढ़ते हैं। सेलेक्टिव स्टडी में क्या है, मेक इट अ परसेंटेज, पर नाउ इट्स ए कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। आप वेदांता का ले लो या कोई भी है जो क्या है कि पब्लिक प्राइवेट सेक्टर ले लो, उनके अपने है जो एंट्रेंस एग्जामिनेशंस होते हैं, उनके क्वालिटी मार्क्स और स्पेसिफिकेशंस होते हैं। इफ़ यू आर नॉट मीटिंग टू दैट रिक्वायरमेंट, यू कैन नॉट सर्वाइव, यू कैन नॉट गो विद दैट। इट्स वेरी कॉम्पिटिटिव। तो ओनली नॉलेज इज़ वैल्यू। तो मैं यही बोलूँगा कि आप जो भी अभी बहुत सारे एमएससी स्टूडेंट्स हैं बेसिकली, सो प्लीज़ लुक इनटू दिस एस्पेक्ट्स। और रियली इफ यू वांट टू मेक योर करियर इन द फील्ड ऑफ अर्थ साइंसेज, देन डेफिनेटली जो कि आपको सेलेक्टेड स्टडी नहीं करने का है। कोई भी जो भी चीज़ करना है उसको एक मिशन बना करके मिशन मोड में अगर आप करेंगे, देन यू विल बी सक्सेसफुल। जियो टेक्निकल स्टडी, जियो टेक्निकल अप्राइजल, आज इंडस्ट्रीज के गुजरात के पूरे में आपका नाम है। कोई भी इंडस्ट्री लगती है, आप जियो टेक्निकल अप्राइजल देते हैं, कितनी बड़ी बात है। ये तो जियोलॉजी से हटके बात हुई ना, कितनी बड़ी बात है। और आज रिटायरमेंट के बाद भी आपको समय नहीं, तो ये इस तरह का अपन को अप्लाइड एस्पेक्ट में भी जाना पड़ेगा। So last I request now friends listen. Now as we know, I mean, we should hit the iron when it is hot. Okay. Now our soup is getting cold. बात समझिए, ये स्ट्रक्चरल जियोलॉजिस्ट है साहब। आप बताइए, नेशनल हाईवे सड़क बन रही है, उसके अंदर एक जियोलॉजिस्ट का इम्पोर्टेंस अगर है और अगर मान बनाया है तो मिस्टर चौहान ने बढ़ाया अपने इंडिया के अंदर, राजस्थान में तो बढ़ाया ही है। नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट के अंदर कौन सा एंगल कहाँ लेना है, कितना स्लोप लेना है, क्या रॉक्स की कटिंग का मामला है, ये सब में आपने कहाँ पे वो सुरंग बनेगी, टनल बनेगी, ये बहुत बड़ी बात है। ये इस तरह के एस्पेक्ट्स को आप यंगस्टर्स को देखना है। So friends, I mean, everybody has said what they want to guide you. Now it's time is too late now. I mean, our organizer is saying let's start with the soup. Okay, enjoy dinner. Okay, thank you. Thank you, sir.